उनको दावत देती हूँ कि मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब जो CEO है सिलिकॉन विलेजेस पाकिस्तान के स्टार्टअप हेडक्वार्टर्स यहाँ लेकर आ रहे हैं. अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम प्लीज. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Saiba, and thank you very much, Malik Saab. Thank you, ladies and gentlemen, and especially our guest who had come from Lahore in this bad weather. And mostly they are our sales partners. I am also grateful to our teams headed by Brigadier Falak Sher, Amin Saab, बाकी सब लोग जितने भी हमारे ब्रांच हेड्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. बिकॉज़ मैं 3-4 रोज़ पहले इस्लामाबाद से कराची गया और मैं थ्रू आउट 2-3 दिन यही सोचता रहा कि ये शायद मुमकिन ना हो पाए कि हम अपने स्टार्टअप HQ के अंदर ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएँ. और मैं कॉन्टीन्यूसली अपने स्टाफ को पूछता रहा कि आई होप कि विल बी एबल टू मेक इट, एंड दे सेड कि नहीं सर सब कुछ हो गया है, सब ठीक हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इधर आया हूँ आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैं स्टेट वे एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर यहाँ अरेंजमेंट हुए. और उसके लिए जहाँ पे हमारे अपने डिपार्टमेंट जो हैं वो काबिल सिताइश हैं, बट जो हमारे गेस्ट आए हैं उनका भी बहुत बहुत हम मशकूर हैं. सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ. अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ के लिए ये शहर ये जो 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 हमारा साल है ये बहुत बेहतरीन करे और आप खुश रहें इसमें. I, as a CEO of Silicon Village, especially on behalf of our chairman, आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में वेलकम करता हूँ. It's a historical day for us because of the reason कि this is the first Silicon Village का इवेंट है जो Silicon Village के अंदर हो रहा है. I am sure इसके बाद बहुत सारे होंगे और आप आते रहेंगे और ज्वाइन करते रहेंगे. It's indeed a memorable day for us. These days the knowledge economy and the technology is a buzzword in this world today. I really do not know how many out of you in this hall are without a phone, smartphone or a dumb phone. Can you raise your hand who is without a phone here? None. So this is what technology is. It has even reached to our bedrooms. But have we ever thought why we are obsessed with this technology? Why our 65% youth, which is under the age of 34, they are addicted to technology? It's not only the youth, the people like me, we also when get up in the morning, first thing we see is our program of the day. Then you go out, call Uber, you go to office, and then you get into these Zoom meetings. So technology has become part of our life. It's a paradigm shift. There used to be a time when we have different requirements, but with the passage of time, now everybody feels secure when he has a telephone. This small little slim gadget in your hand, it gives you everything. It is your advisor, it's your doctor, it's your engineer, it's your architect, it's your banker.
and it is your entertainer as well. So everything is converging onto this small little gadget. You call it a smartphone or a dumb phone or whatever you may call it. Not to mention about the new technologies which are coming up in shape of artificial intelligence and biotechnology. I really do not know how this world would look like in 2050. आज हम 2024 में खड़े हैं. 2050 में जिंदगी कैसी होगी मेरी तो ये समझ से बाहर है. Maybe many out of you would be having a Zoom meeting or calls on Moon or Mars. It is very much possible. Why we focus so much on technology? Why this youth is obsessed with technology? Because this is the fastest growing sector in the world and in Pakistan as well. Our IT export is going up by the day. हमारी यूथ को कोई मिलियंस ऑफ रुपीस नहीं चाहिए कि आईटी की कंपनी बनाए या आईटी का बिजनेस करे. दे जस्ट नीड अ लैपटॉप, अ टैबलेट और ए फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन, and then they can start their work. Now you don't have to go to America to earn an American dollars. That you can do it here. आपको बड़े शहरों में भी आने की जरूरत नहीं है. अगर आपके गांव में भी बिजली है, आपके गांव में इंटरनेट है, तो you can quickly make money. So there are many positivities in Pakistan, as the doctor, our host lady was saying, that we don't have to now run after those agents जो कि हमें खींच के तो पाकिस्तान से बाहर लेके जाए. यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. मैं अक्सर लोगों को ये सम टाइम मिसाल देता होता हूँ कि यहाँ एक बहावलपुर के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर, अगर उसके पास 300 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ 2-2 साल की जो आईटी कंपनीज हैं उनके पास 2-2, 3-3, 100 बच्चे और बच्चियां काम कर रहे हैं. हमारे पास एक पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर आए और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 2 हफ्ते से फिर रहा हूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, मुझे अपने 6000 लोगों को बिठाने के लिए जगह पाकिस्तान के कैपिटल में नहीं मिल पा रही. आप हमें जगह दें और हमसे ब्लैंक चेक ले लें. अब हमने क्यों सोचा कि हम सिलिकॉन विलेज बनाएं और उसको स्मार्ट सिटी के अंदर बनाएं, ए टेक्नोलॉजी पार्क विद इन ए फ्यूचरिस्टिक सिटी, अ सस्टेनेबल सिटी. उसकी एक रीजन है. द रीजन यह है कि जिस वक्त हमने स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में सोचा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया वो ये था कि अगर हमने स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसका मतलब क्या है. ये 2 लफ्ज है, स्मार्ट एंड सिटी. तो स्मार्ट का क्या मतलब है और सिटी का क्या मतलब है. तो जब हम इसकी डिटेल में गए तो हमें पता चला कि सिटी में और हाउसिंग सोसाइटी में फ़र्क होता है. सिटी वो होता है जहाँ पे गरीब लोग भी रहते हों, मिडिल क्लास के लोग भी रहते हों, अमीर लोग भी रहते हों, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हो, एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते हो. वाइब्रेंट सिटी होता है, लिविंग सिटी होता है, ब्रीदिंग सिटी होता है. तो एक हाई एंड हाउसिंग स्कीम बनाना तो कोई मसला नहीं है, और भी पाकिस्तान में बहुत सारे थे. फिर सिटी वो होता है जहां पे आपको उस शहर से बाहर जाने की जरूरत कम से कम पेश आए. वहां पे प्राइमरी हेल्थ हो, सेकेंडरी हेल्थ हो, आपके हॉस्पिटल्स हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज हो, फैमिली के लिए पार्क्स हो, यंग
लोगों के लिए काम करने की जगह हो, यंग लोगों के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, साफ सुथरा शहर हो, ग्रीन सिटी हो, वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें, वो हेल्दी सिटी हो, लोग साइकिल यूज़ करें, बाइसिकल पे जाए, पैदल जाए या फिर क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। और जब हमने नाम दिस इज व्हाट इज द स्मार्ट सिटी एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमने जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू करा था, हमने उस दिन भी ये बोला था कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है बट डिफरेंट है, हमसे अच्छी सारी दुनिया होगी बट हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हम घोड़े को गधे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है, बट लेट मी से दैट हम ऑरेंज को एप्पल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते। ऑरेंज इज एन ऑरेंज, एप्पल इज एन एप्पल, सो आवर कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट। सो आप भी जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, आप मत घबराएं। हम एक डिफरेंट चीज पाकिस्तान में ला रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पास इधर पाकिस्तान के एक टॉप नॉच डेवलपर हैं, वो आए और जब उन्होंने सिटी का विजिट करा तो उसने मुझे कहा कि आबिद, आई वांट टू सी योर चेयरमैन एंड योर ग्रुप सीईओ। आई सेड, व्हाई यू वांट टू सी देम? आई एम हियर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। He said, I want to see those people who has taken this big initiative and risk and played this gamble. ये आपकी मोटरवे है, हमारे लिए बहुत आसान था, इसके ऊपर शॉपिंग मॉल बनाते, बिलियंस ऑफ रुपीस बनाते, हम साइड पे चले जाते। हमने वो जमीनें फ्री यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दी। डे बिफोर यस्टरडे हार्ले इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कॉल करा लंदन से, एंड ही सेड कि हम नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। और उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उस हॉस्पिटल को कौन फंड कर रहा है, उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड देन they just don't spend their money like that. They do proper due diligence. They take time. They understand the concept and then they jump in. This is going to be their first project in health sector in Pakistan. So why I am saying is, ये सारी जो मेरी बातचीत करने का मकसद था वो ये आपको बताना था कि प्लीज़ इसको आप ये ना कहें कि हम कोई कॉलोनियाँ काट रहे हैं या हम कोई शहर काट रहे हैं या हम कोई एक्स नंबर ऑफ प्लॉट, हम ग्रीडी हैं और प्लॉट बना रहे हैं। ऑफ कोर्स प्लॉट बनाने हैज़ टू बी ए सिटी, ए सस्टेनेबल सिटी, जिसके अंदर इसने अपने आप की, इसकी अपनी एक इकोनॉमी होनी चाहिए। तो वो एक बैलेंस तो हम ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आता हूं अपने सिलिकॉन विलेज के ऊपर। तो बहुत सारे नाम तजवीज़ करने शुरू किए हमने कि हमने एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाना है, बिकॉज ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी है, तो व्हाई इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी? टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत क्या है? तो वी रियलाइज के टेक्नोलॉजी को हमने यूज करना है दो तीन वजूहात की वजह से। वन, कि जो हमारे अल्टीमेटली रेजिडेंट हैं उनके लिए सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल होनी चाहिए। और ये काम अगर हम अपनी जेब से करेंगे तो एफिशिएंट तो हम कर सकते हैं। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप दुनिया की कोई भी चीज इधर ला के क्रिएट करना चाहें, आज अगर आप इधर एफिल टावर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बट हु विल फंड दैट? सो द पंच लाइन इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। और फिर उस जगह के ऊपर हमने देखा कि इसका सोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको दे सकती है। आज जैसे मैंने आपको कहा कि आप हर एक की जेब में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो वो आपको एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल सर्विस दे रहा है। आप गूगल के ऊपर फ्री में देख लेते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ है जो मेरे नज़दीक, फ्यूल स्टेशन कौन सा है,
मोटरवे खुली हुई है या बंद है। सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज जो कि टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है और फ्री में करती है और एफिशिएंटली करती है। हम में से बहुत से लोग जो मेरी एज के लोग हैं, इनको पता है जब हम पाकिस्तान से बाहर टेलीफोन कॉल करते थे तो हाउ एक्सपेंसिव इट यूज्ड टू बी, और ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी को हम लाइव फोन के ऊपर देख पाएंगे। आई सजेस्ट 40 years back. So now it is, WhatsApp is free, everything is free now. So that is what I wanted to say कि हमने सोचा कि जो स्मार्ट सिटी है इसके अंदर हम जितना टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट लेके आएंगे उतना ही हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम अपने रेजिडेंट को अफोर्डेबल और एफिशिएंट मैनर में दे सकेंगे। अच्छा, जब हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया तो पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली इस्लामाबाद लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनियों के बुरे हाल थे। बेचारे पड़े हुए हैं, प्लाजों में पड़े हुए हैं, कोठियां घर में किराए पे ली हुई हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कभी बिजली आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी इंटरनेट बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है। सो व्हेन यू हैव मोर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट मीन्स लेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा जो इंसेंटिव होता है दैट इज द डॉलर साइन। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो कहाँ पे खुश है। और हमें खुद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की और टेकीज की जरूरत थी। हमने खुद, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी कि हम इसके अंदर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, वो सिक्योरिटी है, वो हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन है, एवरीवेयर वी वांटेड टेक्नोलॉजी। और जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की हमारे में जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो इस्लामाबाद और पिंडी तो पूरी नहीं कर पा रहा। तो हमने कहा लेट्स मेक ए टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान के अंदर। और जैसे कि हमारे चेयरमैन की भी विजन होती है कि अगर कोई चीज बनानी है तो दुनिया की बेस्ट बनाओ, वरना नहीं बनाओ। तो फिर हमने सोचना शुरू किया विच आर द बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्क इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स व्हेन यू से टेक्नोलॉजी देन यू स्टार्ट फ्रॉम द सिलिकॉन वैली ऑफ सैन फ्रांसिस्को। हमने उसको भी स्टडी करा। फिर हमने स्टडी किया यूरोप का मॉडल कि वहां टेक्नोलॉजी पार्क कैसे बन रहे हैं। फिर हमने फार ईस्ट के स्टडी किए। फिर हमने अपने नेबरहुड में इंडिया का किया, बांग्लादेश का हमने मॉडल डिस्कस किया कि हाउ दे आर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग एंड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स इंडिया वाज वेरी क्लोज टू अस, वी आर द सेम पीपल। They have their official language English, we have our official language English. They have a huge population of young people, we have the huge population of young people. So we are in a way similar. But how they developed their technology कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, वो सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो दिस इज नॉलेज इकोनॉमी। दे empowered their youth. We are not a state, we are a state. We are a small private company. We cannot empower, we cannot, educate the whole lot of population of Pakistan के जो youth है। So हमने सोचा कि चले हम एक चिराग इधर जलाते हैं, हम अपना इधर एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हैं। But that has to be world class, number one, and that it has to has all the ingredients which are required by all the technology companies which are working in Islamabad and Rawalpindi, and the problem they are facing. So we will take care of those problems. We will solve those problems. हमने सिंगापुर में, we like 2 technology park which were designed by Surbana. So we asked them to design a technology park for us. 300 acres के ऊपर. Let me here tell you, in Pakistan, if you want to go and you want to develop a technology park, the minimum land requirement is 5 acres. 5 acres, and we are developing on 300 acres. इस वक्त इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी पार्क है, दे आर मोर देन 860 से ज्यादा के टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में, एंड ह्यूज बिग पार्क्स इन बैंगलोर, इन हैदराबाद, इन अदर। इन पाकिस्तान वी हैव आई थिंक 25
When we say technology park in Pakistan, like many of you, you are from Lahore, this Irfa Karim Tower is one technology park. So one building is a technology park. So we thought if we want to do it, so let's do it at a scale, which become ultimately the pride of Pakistan. तो हमने प्लान करा 300 एकड़ के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर, and similarly the largest in Lahore. Now, when we say the Silicon Village, so मैं आज आपको ये बता रहा हूँ जो हमारा सफ़र है, उस सफ़र में आपको अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा थॉट प्रोसेस था, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, वो क्या था, क्या हम सोचते रहे, क्या हमें इश्यूज आए, क्या चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटीज आई, और आज हम जहाँ पे पहुँचे. Even small little thing, the Silicon Village. Why Silicon Village? Why not something else? तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने डेलिब्रेशन की, इसके ऊपर भी हमने बड़ा डिस्कस किया. I mean, when you say silicon, that means technology. Very simple. In America is the Silicon Valley. You go to New York, it is Silicon LA. You go to London, you see Silicon Roundabout. You go to Israel, it is Silicon Wadi. You go to Dubai, it's a Silicon Center. So Silicon, immediately it relates to the technology. And then why village? Why village? Because village, if you critically see, many out of us are from the villages. जो village होता है वो एक बड़ी self-sustained community होती है. उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत dependent होते हैं. There is lot of interaction. वहाँ ये नहीं होता कि हमसाये को हमसाये का पता नहीं है. So लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. उनकी survival एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. कोई कुछ चीज़ बना रहा होता है, कुछ चीज़ बना रहा होता है, वो उसको चीज़ देता है, वो उसको देता है. तो जब आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन है. और इनोवेशन के लिए जब तक आप हार्डवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आइडियाज़ नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, नई प्रोडक्ट कैसे आप बना पाएंगे? और जब तक नई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आप हाउ यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, या आईटी कंपनी कैसे सक्सेसफुल होगी? तो हमने इसको विलेज इसलिए रखा है इंटीग्रेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, सो दैट लोग एक दूसरे से उसकी एक्सपीरियंस से, उसकी एजुकेशन से फायदा उठाए. There are three, four components which are extremely important for the success of any technology park in the world. Number one is the techies. हमारे जो ये पीछे वाले टेबल के ऊपर मैं मिला हूँ, हमारे brilliant young boys. They went to Saudi Arabia, they won certain medals. Abid, इन्होंने national champions जीता है. There are many of them. They are sitting here, and of course there is no dearth of these young guys. So these are very important guys. इनके लिए या जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, इनके लिए स्टेट की जो सपोर्ट है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन पाकिस्तान के अंदर द स्टेट इज़ डूइंग अ लॉट. अंडर द सर्कमस्टांसेस देयर, दिस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो स्टेटस है वो हमने भी अप्लाई किया हुआ है. होपफुली इंशाल्लाह विद इन 2 months वी विल गेट दैट स्टेटस. एंड दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी जब सिलिकॉन विलेज में आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ उसके ऊपर नहीं होगी, उसके जो एक्सपोर्ट है उसको बेनिफिट मिलेंगे. देयर इज ए ह्यूज लिस्ट ऑफ बेनिफिट जो कि बाद में मेरे कलीग आएंगे और वो आपको बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल का पोर्शन आएगा उसमें. तो स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमने वी हैव इंश्योर्ड. स्टेट इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज द private enterprise. We are the private enterprise. So we are with them. We are developing a physical and the technical infrastructure for them. We are creating a platform for them. On this platform, they can now, this is the time then they can go for the innovations. So whatever is required for a tech company, that ecosystem, that environment, that we are creating in this village, we call it the Silicon Village. मैं बड़ी ब्रीफली अभी आपको बता देता हूँ. ये तो हमारा जो एक सफ़र था जो हमने तय किया आज तक, और उसके बाद अब हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं.
हमारा प्लान क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की शेप में बताता हूं कि हमारी विजन क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है और आगे हम कैसे चलेंगे। हाँ चले नहीं, ऐसे दे देंगे, आप बता दें, आप इसको चला। सो आवर विजन वाज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। विजन पे प्लीज शो विजन। To develop an ecosystem and environment. The focus is on ecosystem and environment, which at the moment in Pakistan is non-existent. काम हो रहा है, but वो ecosystem नहीं है. That nurtures technology-driven companies fostering innovation, collaboration, and growth for enterprises and entrepreneurs. So collaboration is a key word. Very simple. इसको हमने realize करना on ground के ऊपर, तो I will explain it to you कि हमने इसकी Silicon Village की location जहाँ पे आप बैठे हैं, it is a project which is in a bigger environment, a sustainable district within a bigger sustainable district. Location, very clear, ecosystem and enabling environment, and I'll give you update at the end. Next, please. Location, you understand. Next. Many of you understand where the location is, yeah. Next. When we say enabling environment, what does that mean? हम में से बहुत सारे लोग they don't understand the importance of designing. Yesterday I was in Karachi and I was discussing some project, and they were focusing on development. सड़कें बना दो, बिल्डिंगें बना दो. So I said, where is the planning? And the planning is not a problem. So I said the problem is in the planning. Planning has to be extremely important. We took about 1.5 years इसकी planning करते हुए. Why? Because it must meet the requirement of lowest tier के जो startups हैं, mid tier की जो companies हैं, और फिर top tier की company जो ultimately they will become the unicorn of Pakistan, I would say, inshallah. So master plan, we divided into 3 clusters. I'll explain it to you. Then physical infrastructure, technical infrastructure, which is very, very important. Auxiliary services, again, very crucial. And STZA, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि that is in process. Hopefully it will take about two months to get it approved. Next, please. So this is the master plan. This is the master plan of Silicon Village. So we are talking about the Silicon Village. So जैसे मैं आपको कह रहा था कि Silicon Village की या टेक्नोलॉजी पार्क की सक्सेस के लिए इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ का होना ज़रूरी है, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, प्राइवेट एंटरप्राइज का होना ज़रूरी है, इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है, और फाइनेंसिंग का होना ज़रूरी है. So we have a beautiful 300 acres of land. All 4 sides is the roads. In between, beautiful lake. I'm sure if you get time someday when the weather is good, you must go around and see the lake. Then we have 2 landmark towers. It's a G+40. Hopefully, जैसे मलिक साहब ने mention करा है, इंशाल्लाह इस साल हम G+40 का जो टावर है ये शुरू कर देंगे. Then in towers के साथ we are planning to have the university also. We will hopefully start university. Then we have divided the development. हमारी strategy ये है कि इस सारे को एकदम से develop ना करा जाए, बल्कि इसको phases में develop करा जाए. So we have divided into 3 phases. Phase 1, we call it cluster A. Cluster A जो है ये आपको नज़र आ रहा है. ये जो टेढ़ी मेढ़ी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हर क्लस्टर जो है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड क्लस्टर है. यानी उस क्लस्टर के अंदर वर्क प्लेस है जहाँ पे लोगों ने काम करना है,
उसी क्लस्टर के अंदर उनकी अकोमोडेशन है जहां उन्होंने रहना है, उसी क्लस्टर के अंदर एक शॉपिंग एरिया है, उस क्लस्टर के अंदर एक स्मॉल लिटिल मॉस्क है, उस क्लस्टर के अंदर एक मीटअप प्लेसेस है, एक छोटा सा क्लब है या कॉफ़ी शॉप्स है जहां लोग बैठ के तो व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे, और उसी क्लस्टर के अंदर आपके जॉगिंग ट्रैक्स हैं। सो हेल्थी लिविंग के लिए वी वांट टू डिस्करेज पीपल टू यूज़ कार्स, सो यूज़ करें इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें या पैदल जाएं। सो दिस इज़ क्लस्टर 1 या क्लस्टर ए विच इज़ अबाउट 130 एकड़ के ऊपर है, और अभी हम जो डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं वो क्लस्टर ए के अंदर ही कर रहे हैं। अभी भी हम जो बैठे हुए हैं वो क्लस्टर ए ही में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, अब क्लस्टर ए के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर आप देखें तो आई एम श्योर मैंने उसको मार्क किया होगा, A1, A2, A3 जो हैं ये हमारी 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट है। व्हेन वी से 3 स्टार दैट मीन्स 3 बेडरूम 4 बेडरूम सर्विस्ड अपार्टमेंट हैं फॉर द मैनेजर्स के लिए। देन वी हैव A6, A5, A8, ये हमारे 2 स्टार सर्विस्ड अपार्टमेंट हैं जिसमें 1 बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव लैंडमार्क टावर, जिस तरह मैं आपको बता रहा था ये हमारे लैंडमार्क टावर हैं 2। बी स्टैंड फॉर द बिजनेस, बी स्टैंड फॉर द ऑफिसेज, ये ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। ए स्टैंड फॉर अकोमोडेशन, सी इज आर शॉपिंग मॉल, एंड डी इज द यूनिवर्सिटी आर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब दैट वाज आल्सो फेयरली अ बिग टाल टास्क फॉर अस, तो हमने फिर प्लान ये करा कि उसके अंदर से भी फिर एक टॉप प्रायोरिटी दी जाए। सो प्रायोरिटी 1 वाज द क्लस्टर ए, एंड क्लस्टर ए के अंदर फिर फर्दर जो हमने प्रायोरिटी दी उसको भी हमने यही कंसिडर किया कि जो यहाँ काम करें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी बीन IT यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेनिंग सेंटर, वर्क प्लेसेस, बिल्डिंग्स, स्टूडेंट हॉस्टल, amenities at walking distance, and public transport. As you must have seen, we have one red line या रेड डबल डेकर बस जिस पे कुछ लोग आप आए भी होंगे। नेक्स्ट प्लीज। Then we have this is the university, it's beautifully designed, this is beautiful lake जो मैं आपको बता रहा था, ये उसका ऑडिटोरियम है, this is meetup places, यहाँ पे इसके 2 विंग्स हैं, बीच में लाइब्रेरी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं एंड डिफरेंट IT के डिपार्टमेंट हैं। वी आर टॉकिंग टू बहुत सारी इंटरनेशनल IT यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम बात कर रहे हैं। लोकल तो बहुत पीछे हमारे पड़े हुए हैं कि आप हमें दे दें हम इसको चलाएंगे, बट वी आर टॉकिंग टू, बिकॉज वी थिंक दैट हमारा HR की जो क्वालिटी है वो इतनी जहाँ जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं है। सो वी हैव टू हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो यहाँ लोगों को HR की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, एंड दैट हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट वी डोंट हैव इन पाकिस्तान। नेक्स्ट प्लीज। These are 2 landmark towers G+40 के, inshallah hopefully we will start one by the middle of or maybe second part of this year. Next. These are workplaces, इसमें हम एक तो बिल्डिंग अभी शुरू मेरे ख्याल हो चुकी है, वो करने वाले हैं, एक और करेंगे हम 2 बिल्डिंग अब इस साल हम इसको शुरू कर देंगे जहाँ पे ये वर्क प्लेसेस भी हो जाएंगी, अकोमोडेशन भी हो जाएगी, तो पीपल विल स्टार्ट लिविंग। नेक्स्ट प्लीज़। दिस आर फ्यू पिक्चर्स जो रेडर्स हैं आपके। नेक्स्ट प्लीज़। ये हमारी इकोनॉमी अकोमोडेशन है जो मैं आपको बता रहा था, 2 स्टार। नेक्स्ट प्लीज़। When we say digital infrastructure, this is very important. I am sure हमारे जो टेक गाइस हैं पीछे बैठे हुए, they would understand the importance of the technical infrastructure because this is an oxygen for them. They just cannot afford, they can afford to skip a lunch or a dinner, but they cannot afford that पिछले अगले 2 दिन के लिए इंटरनेट नहीं है या बैंडविड्थ उतनी नहीं है। सो ये जो टेक्निकल सपोर्ट है जब तक इनको ये नहीं मिलेगी ये नहीं ग्रो कर सके। सो दैट इज द रीज़न दैट वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिनके पास इतना ज़्यादा बैकअप होगा। वी हैव ऑल द बैकअप्स एंड आफ्टर दैट अगर सरकार हमारा इंटरनेट बंद कर देती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, आपको पता है पाकिस्तान में 2 फुलझड़ियाँ कहीं से चलती हैं तो वो इंटरनेट सरकार बंद कर देती, तो फिर हमने लास्ट रिजॉर्ट पे एक सैटेलाइट के साथ लिंक भी रखा है सो दैट IT कंपनीज़ को ये कभी फील ही ना हो कि इंटरनेट नहीं है।
So we have connectivity में, you know, the PTCL is there, the leading guys here, the service provider. Then we are talking to the Transworld, FWO, CyberNet, SCO, CPAC का जो land route है, because first three are the marine route, जो marine submarine cable आती है उनके हैं, but एक हमने land route भी रखा है, so that अगर submarine cable कहीं ना कहीं कट जाती है, जो अक्सर आप देखते हैं कि कट गई होती है, तो then we are planning to have the land route. Next, please. So this is a bit technical, but we just want to say कि ये M2 motorway जा रही है. This is airport. So we are luckily बहुत सारी इधर service provider हैं जो along M2 जा रहे हैं और GT road जा रहे हैं. So हम सबसे connectivity ले रहे हैं इंशाल्लाह. Next please. Power में of course solar है, wind है. We are very lucky that we are located in a wind corridor. So we have a lot of wind. Then Wabda is there, dedicated generator, so power is not a big issue. Oh, Asif Saab aa rahe hain, he will ensure that it is uninterrupted power supply come what may. Next, please. Ye healthy environment, what do we mean by healthy environment is green areas, walking places. So this is one of the features, very prominent feature and important feature. Next, please. ये जो आप लीनियर पार्क देख रहे हैं, ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है. आप बाहर निकलेंगे तो बिहाइंड दिस बिल्डिंग लीनियर पार्क ऑलरेडी इसके ऊपर ये काम हो रहा है आजकल. थैंक टू असगर साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम शाम किया है और ये काम इस पे चल रहा है. नेक्स्ट प्लीज. नाइट वी एक्चुअली बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं विद अमेरिका और यूरोप के साथ. तो रात के टाइम पे उनको बहुत काम करना पड़ता है और वी वांट कि एक बड़ी हैपनिंग सी प्लेस हो इन द इवनिंग. रात डल ना हो यहाँ पे. रात को अगर लड़के लड़कियाँ काम कर रही हैं, उन्होंने अपने अकोमोडेशन में जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, तो वो बैरन सी जगहों पे ना जाएं. वो एक लाइवली सी इन्वायरमेंट हो. वो रात को 3 बजे भी साइकिल पे जा रहा है या जा रही है लड़की, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यू नो. सो इसलिए हमने इवनिंग को बहुत ही हैपनिंग सा प्लान करा हुआ. नेक्स्ट प्लीज. शॉपिंग मॉल. नेक्स्ट. Roof. Next, please. Gymnasium, very important. Next. Okay, so quickly मैं आपको अपडेट दे देता हूँ क्या हो रहा है. आगे चलें प्लीज़. ये इंक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर आप बैठे हैं, आप इस तरह के 5 हॉल हैं. Every time you will come after 2-3 months, you will see a new addition of new hall, right? Next, please. Next. नेक्स्ट. क्विकली लाहौर का भी हम बता देते हैं. इंक्यूबेशन सेंटर, सम ऑफ द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग हमने अभी इसका डिटेल ड्राइंग हो रही है. एक डीपीए कंपनी है सिंगापुर की, वहाँ से हमने डिज़ाइन करवा रहे हैं. फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है ये सेम डिज़ाइनर है जिन्होंने दुबई मॉल भी डिज़ाइन किया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज़. क्विकली. ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है. ये भी हम शुरू हो चुकी है. इसके ऊपर काम हो रहा है. जस्ट बिहाइंड दिस बिल्डिंग when you go out you will see billboard के ऊपर ये बिल्डिंग भी बनी हुई है. ये हमारा इन हाउस डिज़ाइन है and it's going to be as good as any other building. Next. Another view. So here I would say thank you so much for bearing with me. I wanted to take this opportunity कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कहाँ से चले, क्या क्या हम सफ़र किया और कहाँ पे हम पहुँचे. जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा सिलिकॉन विलेज की सक्सेस का है, वो हमारा एक हमारी सिस्टर कंपनी है मॉलिक्यूल. मेरे कुलीग अतर साहब आएंगे, वो आपको उसके बारे में बताएंगे. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स का एंड जो लीगल इश्यूज़ हैं. बिकॉज दीज आर स्पेशली उन कंपनीज़ के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आती हैं. तो उसके लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाउ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें बहुत टाइम दिया. असगर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत दिन रात इसके ऊपर काम किया. आसिफ साहब, ब्रिगेडियर फलक शेर, ब्रिगेडियर क्यानी, बिकॉज ब्रिगेडियर क्यानी और इनकी टीम ने भी बहुत काम किया है. बहुत सारे हमारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत काम किया है. ये फ़हीम साहब बैठे हुए हैं,
अनस लाहौर से आया है, फिर मेरी अपनी टीम है, मैं अपनी टीम का नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम रह जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल. गॉड ब्लेस यू. पाकिस्तान जिंदाबाद. सिलिकॉन विलेज जिंदाबाद.